I'm sure we've tried a lot of therapies, homeotherapy, Ayurvedic and allopathy, of course, but we have not got any permanent relief. Yes or no? क्या हमें कोई permanent relief मिला है? I want to hear from the participants. Are we looking for some permanent relief or some short-term relief? जो शायद आपको मिला भी है. Audio is not available for me. You can switch off and again log in so that you get the audio, because I'm audible to the rest of the people, I think. तो हमें किस चीज की जरूरत है? सम परमानेंट नेचुरल सोल्यूशन. तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा. तो कितने जन तैयार हैं हार्ड वर्क करने के लिए? कुछ तो कष्ट करनी पड़ेगी अपने शरीर के ऊपर. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन हेल्थ. कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है, अनलेस एंड अदरवाइज you want to be all right and you want to work upon yourself. Okay, ये body आपकी है. It is not designed for medicines. It is designed to be worked upon, to strengthen the internal organs that only can take you out of your problems, whatever your situation be today. किसी को पेन है, किसी को इन्फ्लेमेशन है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को स्टिफनेस है, किसी को नींद नहीं आ रही है. तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है. यू हैव टू वर्क एंड ओनली वर्क अपॉन योरसेल्फ. So if you give me some of your screen time, I would like to share how you're going to do that. So do I have your permission? Give me a thumbs up. Okay, thank you so much, Ashok sir. सब लोग अपना वीडियो ऑन करने प्लीज. इट वुड बी ग्रेट टू सी यू. जस्ट गिव मी 2 minutes. Okay. So please maintain some silence so that I can share the screen with you. Okay. Is the screen visible? Yes. Okay. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. हम आज शाम को इकट्ठा हुए हैं for getting to know about the online therapy for neuromusculoskeletal problems. Joint related जो भी problems आपका है, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं. So I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. Kindly do not scribble on the screen, please. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from but have not yet found any relief despite spending a good amount of money on various treatments. तो अब आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको permanent relief मिलेगा? Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method. We've heard of that saying, prevention is better than cure, right? तो हम अगर preventive use करते हैं so that we don't get into these problems in our aging process, it will really help us so that we strengthen our internal organs and make sure it is functioning at the optimum level.
So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi and a human exponents expert. So Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer, जिसका हमें पता है कि कोई भी इलाज नहीं. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या समझाना चाहते हैं जब हम बोलते हैं structure of a human body? So musculoskeletal system उसमें एक है. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? A very, very vital question. ये webinar आखिर है किसके लिए? क्या हम समझना चाहते हैं किन लोगों के लिए ये webinar फायदेमंद होगा? For people who are tired of temporary treatments and are looking for natural and permanent solution. जिसको permanent solution चाहिए और natural solution चाहिए. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa. Freedom from pain and medicines. Swamiji will talk about the 8 Sharir. I will just give you a brief about it. Details आपको Swamiji के recording से पता चलेगा. ये कौन सा 8 सॉफ्टवेयर है हमारे शरीर में? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति एंड विकृति शरीर. ये लास्ट तो जो 2 शरीर है, प्रकृति एंड विकृति शरीर, this denotes the degeneration and the regeneration factors of our body. तो होता क्या है जब हम एक औरत के शरीर में, the moment she reaches menopause, the degeneration starts. Of course, degeneration happens for men as well, but in women it becomes more prominent because we go through life stages. So menopause is one of them. So degeneration होता है, but अगर आपका regeneration factor is not as good as the degeneration, so the imbalance is created, and what surfaces is the pain and the stiffness. So Ashtang Chikitsa can heal a lot of diseases, but we have mentioned a few here, which is commonly seen in participants. So what are these? Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhu about how we can come out of a current situation. Thank you so much for listening to me patiently. Now I will just tell you how we are going to proceed in the webinar. अभी आप सुनेंगे स्वामी राज विभू जी का रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको पता चलेगा how you can come out of your current situation. उसके बाद we will invite somebody who is currently attending the Ashtang Chikitsa therapy classes, and he or she will discuss their journey of Ashtang Chikitsa. उसके बाद we will be sharing the program details, and last but not the least, Swami Raj Vibhu ji himself will be coming live to answer all your questions about your problems and how you can get out of it. So I would request everybody to please write down about your problems in the chat box.
which we will be taking up along with your name and number. Thank you so much, and over to Anilji to share screen. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करता है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation? इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इशू विथ डाइजेशन. नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? हार्मोन इम्बैलेंस, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है. नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर.
if they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors. 8 कारण हैं problem happens जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही
प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं, इफ यू वॉच योर ब्रेथ, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, व्हाट हैपेंस मोर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more, आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वांट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर. सो इज कंस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर और डिस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन. सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti?
There is a method to balance Vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance Prakriti and balance the Vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disaligned हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें disaligned हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें. Just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा.
यू लूज एक्सेस ऑफ वेट, जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार, density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक. 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप. But सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger?
वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं, एफर्ट बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight, weight कैसे लिफ्ट करते हैं, you hold your breath, you can't lift weight without holding your breath, you hold your breath and you, when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles, दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong, your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना, this is what how weight training and body building happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर, यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए, हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. इफ दिस जंक्शन पॉइंट इज ओके, लुब्रिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल, यू कैन परफॉर्म बेटर. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. योर ऑर्गन फंक्शन विल हैपन प्रॉपर्ली. सो दीज आर कॉल्ड मर्मर्स. सो मर्मर नीड्स अ कांस्टेंट रिजुवेनेशन. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते.
And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीज टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देयर इज अ कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरनमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देयर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरनमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यास and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वाता? मूवमेंट. वाता ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, vata dosh से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger.
This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics.
changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now been bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in prana shakti diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then cause.
So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Swayam Prabha ma'am, who is a current participant of Ashtanga Chikitsa, to share her journey for Ashtanga Chikitsa. Swayam Prabha ma'am, are you able to hear me? Yeah, I'm able to listen, madam. Okay. Thank you so much. Namaste for joining us. And Namaste. you can share your journey with our participants. Yeah. I am very thankful to Swami Raj Vibhuji because he has introduced a very good program for us. And then I was suffering with the lumbar problem, L3 and L4. Bulge was there in between L3 and L4. And I came to know about this Ashtanga Chikitsa. And immediately I joined, and then I finished my 9 weeks program. And then now I feel very happy because I'm doing every day. Some exercises which I cannot do, I'm doing it by sitting on the chair. And remaining things which I can do sitting position, I'm doing. And I feel very happy. And then almost 85 to 90% of the problem is solved, my problem.
And once upon a time, I used to wear belt almost every day in the morning after getting up from the bed. Now I stopped wearing. I think once in a while, when I'm really standing for a long time and walking for a long time, if I feel a little bit of pain, I'm using that belt. Almost I stopped using the wearing the belt, and I feel very happy. And then I'm continuing my journey in this chikitsa and doing all this hatha vinyasa and then all kriyas and then kumbhak, everything I'm doing, and I'm feeling very happy. So this I wanted to tell you people. And thank you for all of you who have really given us a very good practical lessons and theory lessons for Swamiji and Rachana, I think Rachana, or I don't know who was taking the practical. Ranjana madam. Yes, She was Ranjana. also very nice and very happy. We could take her lessons, and then we were very enjoyed this while taking the lessons also. And I think Neha madam, you were there in General app, isn't it? No? No, ma'am. That was Himanshu for the technical part. Yeah. So actually, I was following General only. Okay. Thank you so much, ma'am, for joining us for the webinar and giving us an insight of Ashtanga Chikitsa. Thank you so much. Now I would like to invite Chaya ma'am, Chaya Savla ma'am, to share her journey, please. Chaya ma'am, are you able to hear me? Yes, I can hear you. Can you all hear me too? Am I audible? Yes, can you we all hear me? Yes, very much, ma'am. Thank you so much for joining us. I'll just put you on spotlight. Okay. Namaste and thank you for joining us. Chaya ma'am, you could share your journey of Ashtanga Chikitsa. Namaste everyone. Right now I'm at my workplace, so you can see things around. And first of all, I'm truly thankful to Swami Raj Vibhu Sir Ji. This course is just amazing. I have, मतलब मैंने शुरू किया है, मुझे इसे सिर्फ 7 days हुए हैं, and this is my fifth, I can say 5 days of continuous and sincere practice I'm doing. But in these 5 days, I can see my body changing. My first issue was I had a lot of stiffness in my body, and I have this right leg stiffness. My legs don't move sufficiently well, and I can't sit down. And in 5 days of practice, I am sitting down, and the butterfly pose, which was very painful for me, अब वो मेरा pain है ना, it is almost like in say 60% बच्चा है, 40% is quite enough cured. My second issue was that I'm not constipated, but I had this issue of not easy bowel movement. And now the moment I get up, I'm in the washroom, and in 2 minutes I'm done. So my entire body stiffness has gone, and I've become really light. So this is just the starting, and I'm just wondering कि सिर्फ 5 days अगर मैंने ठीक से practice किया है और इतने अच्छे results मुझे मिल रहे हैं, body में energy इतनी लग रही है, stiffness कम हो रही है, pain होता है क्योंकि certain exercises when we do, we are stretching our body. So I'm sure though the weak parts are going to pain, but that pain is going to be sweet pain, which will definitely give me a healthier body. And as far as the course is concerned, it's so well designed कि हम अगर लेक्चर मिस करते हैं तो हमें रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स के बाद ग्रुप्स जो बनते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेजेस इतने सफिशिएंट आते हैं. द टीचर्स हु गाइड अस एंड हु ट्रेन अस थ्रू ऑल द क्रियास, दे डू इट कॉन्स्टेंटली. मतलब एक चीज को गुरुजी के समझाने के बाद भी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हर चीज को हमें 2 बार दिखा के, पर्सनल अटेंशन, पर्सनल क्वेरीज, हर चीज excellently planned and very well done. So I'm too happy that I've joined this course. And if you all are in the webinar and if you all are thinking something ki kare ki nahi kare, तो I will say just go for it. It's a wonderful course, and I'm still waiting ki और आगे I'm just in the first week. I'm just excited कि course जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हमें कितनी अच्छी body में improvement मिलेगी, and I'm happy that I found a tool to take care of my body without medicines. So thank you Ashtanga Chikitsa and Avisa Healing, and especially Swami Raj Vibhu Sir Ji. Thank you so much.
Thank you so much, Chaya ma'am, for joining us in the webinar and taking out time even from your workplace. So we heartily thank you from the entire Visa team. Now I would like to put it over to Anilji to share the program details, which the participants are waiting for eagerly. Okay. Namaskar. Just give me a few seconds and I'll share my screen. Rachna ji, are you able to see the screen? Yes. Okay, okay. All right. So let's get to know about the details of the program, which a lot of you may be waiting for. काफी लोग इंतजार कर रहे हैं program details क्या है, क्या classes हैं, dates क्या हैं, timing क्या है और fees क्या है. Okay. So जल्दी से हम ये cover कर लेते हैं ताकि हम स्वामी जी से अपने questions ले सकें. आपके questions आप स्वामी जी से पूछ पाएंगे. All right. So first of all, this is the guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. These mentors are trained by Swamiji and they'll be taking your classes online on the Zoom app. Zoom app के ऊपर ये classes conduct की जाएंगी और trained जो mentors हैं, कुंभक mentors हैं, अष्टांग चिकित्सा के जो mentors हैं, स्वामी जी द्वारा trained हैं, तो वो आपकी classes या क्रियाओं को करवाएंगे. Program modules. Like Swamiji has already told in the video, there are 3 modules, module 1, module 2 and module 3. Basically, module 1 is about Vat, module 2 is about Pith and M3 is about Kaph. So all 3 modules comprise the full program. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. So total duration of the whole program is 63 days. Program overview, 9 plus 1 week. Why 1 week extra? You'll get to know in a short time. There'll be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning or the main class and 1 will be the mentoring or the practice class. हफ्ते में 2 classes होंगी, एक main class और एक practice class. और सभी videos जो सभी क्लासेस के वीडियोस आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग की जाती है, रिटन इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, वो पूरा डिटेल में जानेंगे. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? आगे आपने क्या करना है? इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू पे द प्रोग्राम फी एंड वी हैव अ स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग फॉर पीपल हु हैव स्टेड बैक. जो लोग अभी रुक गए हैं वेबिनार के लिए, उनके लिए एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है. और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? यू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म, ताकि हम आपके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर पाए कोर्स एक्सेस करने के लिए, जहां पर सारे रिकॉर्डिंग सेव की जाती है. एंड देन यू स्टार्ट योर क्लासेस विद मॉड्यूल 1 फर्स्ट एंड देन अल्टीमेटली मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 विल आल्सो हैव टू बी डन. टोटल क्लासेस, ईच मॉड्यूल हैज 6 क्लासेस. I already told you, 3 learning and 3 mentoring or practice classes, and same is for module 2 and module 3. So total 18 classes plus 1 customization class. What is this customization class? ये customization class क्या है, ये थोड़ी देर में हम समझेंगे. So total engagement is of 10 weeks, 9 plus 1 week. Class start date for the 97th batch. This is the 97th batch that will be starting on coming Monday, which is 12th September at 6:30 p.m. Module 2 start होगा 4th October को और Module 3 start होगा 26th October. A lot of people ask, which module should I join? All 3, starting with module 1. ये अलग से कोई मॉड्यूल नहीं है, बिकॉज पूरा जो प्रोग्राम बनता है तीनों मॉड्यूल्स को मिलाकर बनता है. सेपरेटली कोई चूज नहीं करना है. All 3 have to be done one by one. Okay. So mentor classes or practice classes. If in module 1 the mentor classes on Thursdays, for module 2 mentor classes or practice classes are on Fridays, and for module 3 they are on Saturdays. ये सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप में शेयर किए जाएंगे और अभी जूम चैट के ऊपर. सो डोंट वरी. क्लास एक्सपीरियंस कैसा है? व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज आर लाइव सेशंस कंडक्टेड ऑन द जूम ऐप.
mentors watch all the participants. A lot of people ask that how will we know that if we are doing the kriyas correctly or not. So in the practice class especially, you have to keep your cameras on. Our mentors, they watch each and every participant and give the feedback there and then. They'll correct you if you're not doing the correct kriyas. So that's how we do it. And we've trained more than 1,600 participants till now. So you don't have to worry about it. We are experts at training people through online methods, which is Zoom. Written instruction. You'll get written instruction in Hindi and English. Hindi और English दोनों में आपको written instruction लिखित निर्देश मिलेंगे जिससे आप प्रिंट आउट लेकर उससे फॉलो कर सकते हैं जब आप अपनी क्रियाएं कर रहे हैं. सेशन रिकॉर्डिंग्स और ऑलरेडी टोल्ड यू सभी क्लासेस को रिकॉर्ड की जाती हैं और अवेलेबल कराई जाती है. Next, there will be a lot of extra things that will be shared with you all. Mental practices होंगी उसमें. Unique diet perspective होगा. Lot of people ask if there are any diet restrictions. There's no diet restrictions as such. Then you'll be getting a video from Swamiji, and in this video, it is about diet perspective, what to eat in what season, and it's not a diet plan, and how to cook food so that you do not harm your body. That is all it is given. There are no dietary restrictions. And then you'll get simple detox processes, and there'll be a lot of knowledge that will be shared with you. Now, before I announce the fee for the program, I'd just like to take your attention to what kind of money people may be spending just to manage the disease they are into. Why this is important is because when I announce the price, the fee of the program, you'll know that what you are getting, and if the money that your hard-earned money that you will be investing in your health, whether it's going in the right kind of a program. So let's look at the doctor fee that we could be paying yearly basis, 6,000 to 12,000, depending on the city or the doctor that you are consulting. If you're into physiotherapy, you could be spending another 12,000 to 30,000. Medicines, another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000, you could be spending on a yearly basis, just to manage the problem. And if you are into allopathy, we all know about the side effects of it. So we won't talk about those that much. Okay, so just to give you a perspective that what you will be getting in the fee program that we take from you. And another thing that I'd like to tell you is that it's very important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है कि इन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए, right? Who this program is not for? This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Why I'm saying is this, because since childhood we've been programmed or we've been trained into taking allopathy. कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा दर्द होता है, you get a cold or a cough, you pop a pill, we pop a pill, everybody is popping a pill, right? So that's the lifestyle that we got ourselves into. तो आदत बन चुकी है उसकी. तो इसीलिए जब कोई थेरेपी होती है और जो एक नेचुरल थेरेपी होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाए. लेकिन जैसा कि अभी छाया मैम ने शेयर किया कि उन्हें 5 दिन हुए हैं तो उनको काफी रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो जरूरी नहीं है सभी को विद इन 5 days, विद इन 7 days मिल जाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मेंटली वी आर प्रिपेयरिंग यू टू वेट सो दैट यू कैन see the results after some time. Okay, this is not for those who are not ready to work on their body. What does this mean? Please don't scribble on the screen. This is not for who are not ready to work on their body. Why people are not ready to work on their body? Because maybe they're in pain and maybe they don't have the time. I'll come to that part of also the time issue also, because we get this reason for not able to attend the program is because of the time. क्योंकि अगर कोई इम्पोर्टेंट है हेल्थ आपके लिए तो टाइम तो निकल ही जाता है. किसी भी चीज के लिए तो इम्पोर्टेंट होती है, टाइम निकल जाता है, इफ दैट्स अ प्रायोरिटी फॉर यू.
And it's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes, maybe 80 minutes, or for some people it may take 90 minutes also every day on themselves. यहाँ पर मैं टाइम का इशू थोड़ा बात करना चाहूंगा कि अगर हम एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, if we are moving towards a permanent solution which is natural, so it will take time because you're working on the body, because the problem that you are into, it didn't come overnight. तुरंत एक रातों रात ये प्रॉब्लम नहीं आई है तो रातों रात जाएगी भी नहीं. ओके, सो इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, ये टाइम आप लगाएंगे अपनी बॉडी को करेक्ट करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को ताकत बनाने के लिए, तो उसके लिए समय लगेगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. वी अंडरस्टैंड व्हेन वी आर इन पेन, इम्पेशेंस हो जाता है, हम पेन को तुरंत ठीक करना चाहते हैं, पेन को तुरंत दूर करना चाहते हैं. So please understand that it will require some patience from your part, because howsoever patient our mentors may be, if you are not patient, तो वो काम नहीं करेगा. You will drop out of this program as soon as you enroll. So this is I wanted to tell you, and this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. 70 to 80% of the webinar attendees, like people here, most of the people are, to get some tips, कि देखते हैं कुछ टिप मिल जाए. And lot of people watch YouTube videos, और उनका जो एक फ्री ट्रीटमेंट का या फ्री नॉलेज का एक साइड इफेक्ट होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, वो ये होता है कि लेट्स से यू आर वाचिंग अ वीडियो ऑन YouTube फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जो जाने माने एक्सपर्ट होंगे, वो कुछ एक तरीके से चीजों को बता रहे होंगे, एक तरीके से आपको सलाह दे रहे होंगे. और जब आप दूसरे एक्सपर्ट का देखते हैं तो कंप्लीटली ऑपोजिट अप्रोच हो जाती है. सो आप किसे फॉलो करेंगे? whom would you follow, right? Because it's free, so you can't talk to them, right? और दूसरा जो मैं पॉइंट कहना चाहूंगा कि टिप्स, कि इधर से टिप लिया, उधर से टिप लिया. Permanent healing does not happen through tips. That's what I want to, emphasize on. Because एक टिप लिया वो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, सेकंड टिप, थर्ड टिप, and you'll keep on, taking tips and tips only without any, visible result. कुछ परमानेंट नहीं आपको मिल पाता है. चाहे आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करें या ना करें, कोई भी प्रोग्राम करें, जस्ट फॉलो वन प्रोग्राम फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन, जब तक के लिए बोला जाता है. तो ये प्रोग्राम फ्री नहीं कर सकते हैं हम. रीजन क्या है कि हमारी एक पूरी टीम है. वी गॉट 10 to 12 people who are permanently with us. So उनकी सैलरीज, उनका बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? बिकॉज कई बार लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में अगर ये सवाल है तो आप ये पूछे ना दोबारा से. कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी हैं, पैसा क्यों लेते हैं? स्वामी जी तो हमें फ्री सर्विस देते हैं, बट जो हमारा स्टाफ है, हाउ डू वी पे द सैलरी? हाउ डू वी कीप द बिजनेस रनिंग? हाउ डू वी पे फॉर दिस जूम सेशन? हाउ डू वी पे फॉर द कोर्स प्लेटफॉर्म वेयर वी लॉन्च इट? तो ये सब में पैसा लगता है. एंड वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी कंपनी, हमारी कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है. सो वी हैव टू टेक द मनी आउट ऑफ योर फीस. सो आई थिंक देयर इज अ फुल स्टॉप हियर. सो प्लीज डोंट आस्क मी फॉर व्हाई दिस इज नॉट फ्री. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि इसमें आपको मिलता क्या है. यू विल बी सो डिलाइटेड एंड सो सरप्राइज्ड कि ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इन अष्टांग चिकित्सा इज प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. रूट कॉज डिटर्मिनेशन का मतलब है एक प्राण शक्ति डायग्नोसिस है जिससे जड़ पता लगा जाती है आपकी बीमारी की स्टार्ट क्यों हुई है. अगर आपने ध्यान से स्वामी जी का वीडियो देखा हो, उसमें तो वो बताते हैं कि 84 टाइप की फोर्सेस है बॉडी में. कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप अपनी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो उसको जानना जरूरी है. अगर पूरे प्रोग्राम की जो फी है और सिर्फ डायग्नोसिस हम देखें, सिर्फ डायग्नोसिस ही पूरे प्रोग्राम की फीस के बराबर हो सकता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द थेरेपीज दैट यू सी इन द मार्केट, they do not find the root cause, or they do not know how to find the root cause. So this is the key of this program. Second thing which you get is weekly one main class of 60 to 90 minutes. 60 minutes is the actual class, then we take up the questions,
and so which may take another 20 to 30 minutes. Practice class होगी, practice class में cameras on रखना है, and this is again for 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. Like I already told you, the classes are recorded and made available through a course dashboard. You'll need a login ID and password. So after you log in, you'll find all the recordings there, and you'll find all the written instructions there. Now, fifth point is the videos of all kriyas done in the class are also provided. How these are different from the class recording? Class recording is of the whole duration of the class, whatever 80-90 minutes. But these videos are short videos of each kriya. So you do not have to watch the whole 90 minutes video of the class recording. You can just watch a video of a class, a video of a kriya that may take 2 minutes. Some kriya may take 5 minutes, 10 minutes, this way. So you save time just by looking at the video of the kriya, separate kriyas. Written instructions will be there in English and Hindi. Hindi, English दोनों में written instructions होंगी. लिखित आपको निर्देश दिए जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर सकते हैं और वो फॉलो कर सकते हैं. Private WhatsApp group to ask doubts, questions, 6 days. 2 दिन आप live होते हैं. 2 days of the week you will be live with us. But on the remaining 5 days when you are practicing alone, and if you have any doubt that time, if you have any question that time about the kriya, about the program, so this is the group where you have to ask. As soon as you enroll in the program, you will be added to this WhatsApp class group. Our mentors are added here, and you can ask questions from 10 a.m. in the morning till 8 p.m. in the evening, 6 days a week. Sunday is off for our mentors. So this will be your home for the next 10 weeks. This is where all your questions will be answered. Individual participant progress tracking and feedback. We have Anita ji in our team who will be calling each participant individually after the class. See, this is very important. This is very important because in the group, sometimes you may not be able to ask a question, but if you can talk to somebody and explain your situation, explain your condition, so they'll be able to help you better. There'll be a progress tracking form that you'll be filling every day so that you know and we know whether you're progressing or not. And if you're not progressing, what can be the reason? We try to find that out. Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. Many of you may be having this question that if everybody in the group, in the class group is having different problems, how are the classes same? For 9 weeks, the classes are same. And why they're same, you'll come to know in a short while. In the 10th week, the therapy is customized as per your diagnosis. You remember the first point which I told about? That the Pran Shakti diagnosis will help us determine the root cause. In the 10th week, this diagnosis will be used and your therapy will be customized. Kriyas will be fine-tuned and customized as per that diagnosis and as per your condition. So this is the therapy customization. What happens in those 9 weeks? 3 main primary things happen in the 9 weeks. First is the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. Second important thing that is happening is structural alignment. There are 3 basic alignments that Swamiji talked about in the video also. Thighs, navel and the chest. So these are done in these 9 weeks. The third primary thing that happens is you are taught controlled exhalation. ये पूरा therapy based है, controlled exhalation. आप controlled तरीके से सांस जब छोड़ते हैं. And this is the reason why people who are doing Kapalbhati on a daily basis, they are advised not to do it for the 5-6 months of the therapy that they are into. Okay. Because that is forced exhalation, and what we are trying to do is teach you controlled exhalation. 10th, extended support for 30 days after the program is over. See, we understand this is an online program, and online program has its challenges. There are some difficulties as compared to a face-to-face or live at a physical location. So we offer a 30 days of extra support after the 10 weeks are over. Maybe you were not able to attend the classes, and maybe you lost some, missed some classes. So 30 days of extra support is provided. So you can keep asking questions, getting your doubts cleared and everything. So 30 days of extra support is already there. All these points are already talked about.
Now, program fee for Ashtang Chikitsa, which most of you are waiting for, 14,500. And this covers everything. The 18+1 class for customization, the classes, the support, everything is, included in this. But like I promised, that there's a special webinar pricing, which everybody can afford very easily. What is that? Just 6,500. And this is valid till 10th September because we have limited seats. So these get filled up very fast. 6,500 for the complete program, 18+9 classes, support, and if the 10 points that I talked about in detail, everything you are getting in just this amount. And I've done a little math here. If you divide 6,500 by 19 classes, it thus comes to 342 per class, plus all the 10 benefits that you already know about. All right. How to enroll? You pay the program fee. Details of the payment methods will be shared in the WhatsApp group as well as in chat here. Then you post the payment receipt in WhatsApp group. A team member, they'll pick up that receipt and send you the participant onboarding form on your personal chat. And then you join the class WhatsApp group where every communication will happen regarding the classes, the links that will be shared. And then you start attending classes to learn Ashtang Chikitsa. Simple 5-step process. Payment methods already shared in the WhatsApp group as also in chat. Now I'd like to stop here for some time and talk about the super team that will be at your service. Because program is, howsoever good the program is, but if proper support is not there, sometimes the programs fail like this also. We've seen programs failing because proper support was not there. We have Rachna Shrimal Bothra, she is the program director and the host of this webinar. Then we have Shalini Bhagwat, she is the class manager. And then Pooja Chopra, she is the Ashtang mentor. Ranjana Sohen, another Ashtang mentor. Sukesh, Ashtang mentor. Radhe Gupta, another Ashtang mentor. Soni Chabade, Ashtang mentor. So we've got lots of mentors. Why? Because so that we can support each and every participant easily. We're not short of any staff member. We've got enough staff member to take care of you during these 9 weeks, plus 1 week, plus 30 days of extra support. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge, and she'll be the person you'll be talking to the most before starting your classes. Then Anil Chauhan, that's me. I'll be answering most of your questions in the webinar group after the webinar. We may not be able to take up all the questions because Swamiji has limited time. So if your question is not answered here, live in the webinar, please do not worry. I'll answer all the questions and I'll be awake till 11. So don't worry about it. All questions will be answered till 11 p.m. today and then tomorrow also. Then we have Himanshu Reddy, he's the technical person. He takes care of all the login IDs, passwords, video uploads, written instruction download, everything. He'll be the person that will be helping you out if your video is not playing, if your app is not installed properly. And then we have Anita Vijayan. She'll be the person who will be giving you calls personally. We have a person who just gives calls to each and every participant one by one. And that is personal support that we give, because in the group, you may not be able to ask. So we have a proper team. That's all I want to emphasize upon you and give you this confidence and this assurance that please do not think whether you'll be able to do it or not, because we've been doing it for quite some time now. We've trained more than 1,600 people in our previous batches, and we've taken care of all of them, and everything is happening online only. So if there's this thing in your mind that how it will be done online, we've already done it. We're already doing it. And a lot of people have already benefited and are benefiting. So with this, I come to the end of my part, and I think Swamiji has joined. Let's put our questions to him. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now I will be taking up the questions. Swamiji has joined in. So I think everybody is waiting to get their question answered. Namaste, Swamiji. Good evening. Okay, so we'll just take up the questions one by one.
Okay. Okay, Amrita Ghosh talks about will she get permanent relief from pain? Permanent relief from pain. First of all, you need to understand what is pain. आपको समझना पड़ेगा कि दर्द होता क्या है. What is pain? So, in majority of cases, whenever your body is uncomfortable, आपको अपने एक्सपीरियंस से समझने की बात कर रहा हूं. आप अपने एक्सपीरियंस से समझिए. Pain factors, when it aggravates, whenever there is a lot of activity, you become tired, you feel more painful. दिन में बहुत काम किया, शाम को दर्द बढ़ जाते हैं, होता है ना. तो क्या हुआ? The more you work with this body, the more heat generates, or the body also requires energy and there is more heat generated. किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में अगर उसको एक्शन करवाएं तो गर्म होता है ना, गाड़ी गर्म होती है. So whenever there is more activity, your body gets heated up. Whenever your body gets heated up, जब भी आपका शरीर गर्म होगा, आपके पेन फैक्टर्स बढ़ जाएंगे. Now let's understand it very easily through some problem in the body. कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में है, इसको इस तरीके से समझते हैं. तो आपका शरीर इसको ठीक करने की कोशिश करता है या नहीं करता? Is your body dead or alive? Is it intelligent or dumb? आपका शरीर इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ है? आपसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट. हाँ, इसको बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है ये शरीर. That means whenever there is a difficulty in the body, it will try to correct it. वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, है ना. So it will actually start many functionalities within itself. अपने अंदर बहुत सारे कामकाज चालू करेगा, और कामकाज जब भी करेगा तो ये भी गर्म होगा, पेन फैक्टर्स बढ़ेंगे, शरीर गर्म भी होगा और शरीर के दर्द भी बढ़ेंगे. तो आपको मालूम है ना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट कोरोना? कोरोना किन किन को हुआ? कम से कम वायरल तो सभी को हुआ. सो व्हेनेवर द बॉडी गेट्स इनटू अ वायरल सिचुएशन, बॉडी हीट्स अप. फीवर होता है कि नहीं होता? क्यों होता है फीवर? क्योंकि बॉडी ठीक करता है इसी तरीके से. द बॉडी करेक्ट्स इटसेल्फ. बट व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? आप एक डोलो खा लेते हो, एक पैरासिटामोल खा लेते हो ना, इसको काम नहीं करने देते ना. So major chronic disease has happened because we have not allowed the body to work. हमने शरीर के साथ बहुत छेड़ाछाड़ी, बहुत ज्यादती की है, इसको क्रिमिनल बना दिया है, इसलिए आप आज इतनी प्रॉब्लम में हैं. Otherwise this body is capable to take care of any kind of disease and difficulty. लाखों सालों से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पिछले 100 साल में प्रॉब्लम आ रही है. तो जब भी शरीर गर्म होगा, पेन फैक्टर्स बढ़ेंगे आपके, मगर उस तरीके से ही ठीक भी होगा. नाउ यू हैव टू कंट्रोल द पेन फैक्टर्स. तो एक काम कर सकते हैं, आप पैरासिटामोल खा के करते क्या? आप डोलो खाएंगे 650 मिलीग्राम, तो वो करेगा क्या? दर्द थोड़ी ठीक करेगा आपका, वो ठंडा कर देगा. ठंड से दर्द कम होता है, लेकिन शरीर का कामकाज भी कम हो जाता है, शरीर ठीक भी नहीं कर पाएगा अपने आप को. तो जेंटली अगर इसके साथ में डील करेंगे, पेन खत्म करने के लिए नेचुरली डील करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो अगर आप शरीर को जहां भी दर्द है उसको ठंडा कर दें तो दर्द खत्म हो जाए. दूसरे तरीके से बोलूं, अंग्रेजी के अक्षर में बोलूं, इन्फ्लेमेशन कॉजेस पेन. दर्द किस वजह से? इन्फ्लेमेशन से है. हड्डी टूटने से जो दर्द है ना, वो अलग तरीके का दर्द है, वो ठीक हो जाता है बड़ी जल्दी. आपके शरीर में कहीं भी हड्डी 50 टुकड़े हुए हैं, उसे दर्द नहीं होता. इन्फ्लेमेशन होगा तो दर्द होगा. तो इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है. और दूसरा तरीका क्या है? आप खरोच लीजिए अपने स्किन को, जलन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा. आप घी लगा लो, ठीक हो जाएगा. तो कोई भी ठंडा ऑयल भी लगा लें तो भी दर्द कम हो जाता है.
पानी लगा लें, ठंडा पानी वहां पे डाल लें, ठंडी पट्टी कर लें तो भी दर्द कम हो जाता है। अपने अंदर ठंडक लेके आ जाए तो भी आराम हो जाता है। कुछ प्रोसेस है शीतकारी, वो कर लो तो भी ठंडा हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएंगे। अगर आप आराम कर लीजिए तो भी शरीर ठंडा हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएंगे। आप शरीर को स्लांट कर लीजिए, सिर नीचे पांव ऊपर, तो भी शरीर ठंडा हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएंगे। तो दर्द क्यों होते हैं? इन्फ्लेमेशन से होते हैं। दर्द क्यों होता है? जब भी शरीर आपको ठीक करेगा तब थोड़ा दर्द क्रिएट होगा। अब और थोड़ा पीछे आ जाते हैं, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। क्यों इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा? क्योंकि आपके शरीर में एक फैक्ट्री जैसा है जिसका कच्चा माल आ रहा है और फिर एक तैयार माल बन रहा है। तैयार माल ठीक नहीं बन रहा तो वेस्ट हो गया ना। वो वेस्ट हमेशा जलन, या उसको टॉक्सिन कहते हैं, वो जलन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस रेट से बढ़ रहा है दुनिया में बताइए? डायबिटीज किस रेट से बढ़ रही है? थायराइड किस रेट से बढ़ रहा है? ये दो प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, तो और भी बहुत सारे, मगर ये बताइए थायराइड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डायबिटीज बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है ना। तो यानी कि हमने कुछ तो किया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आने के लिए, यानी लिवर के साथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। आपके शरीर में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप एनवायरनमेंट चेंज कर दें तो मेटाबॉलिज्म इंपैक्ट होता है, आप फूड चेंज कर दें तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आप दवाई लें तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। बचपन से दवाई ले रहे हैं ना आप लोग? ड्रग एडिक्ट हो कि नहीं हो? शर्मा जी का लड़का थोड़ी है ड्रग एडिक्ट, वैसा आप बोलते हो। आप अपने घर में देखिए कितनी दवाइयां हैं और बचपन से कितनी ली होंगी आपने। तो आप लोग सब ड्रग एडिक्ट हो। तो ड्रग एडिक्ट के शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए आपको डायबिटीज होगा। हाँ, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है शरीर में, उससे दर्द बढ़ता है। उससे आपके शरीर में चीजें, ऑर्गन काम नहीं कर पाएंगे, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिल पाता, एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो आप कैल्शियम खाओगे तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस नहीं जाता है, एक भी प्रूफ नहीं है दुनिया में। आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, बॉडी में दर्द जाएगा। मगर इमीडिएट रिलीफ के लिए बताया, शरीर को ठंडा कर दीजिए, दर्द चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How can we solve the problem of epilepsy? Redmi 91. Epilepsy, see what happens whenever there is a webinar and there is a question answer session, it becomes a very kind of a university class बन जाते हैं, क्योंकि आप ये सब चीज जानना चाहते हैं। हालांकि ये एपिलेप्सी वर्ड तो हमने नहीं बताया, किसी और ने बोला है आपको, मगर उनसे नहीं पूछते, आप डॉक्टरों से नहीं पूछते सब बातें, क्योंकि डॉक्टर के पास एक आसान सा जवाब है कि भाई ये ठीक नहीं होता, और आप मान लेते हैं जेनेटिक है, और आप मान। तो हम क्रिएट कर रहे हैं एक नॉलेज बेस जिसमें कि हम बता सकें कि ये कैसे होता है। अब आपको मैं एपिलेप्सी के ऊपर एक छोटी सी बात बताऊंगा, उससे आपका कम से कम आंखें खुलनी चाहिए। पिछले 100 सालों में एलोपैथिक साइंस ने एपिलेप्सी के ऊपर रिसर्च किया और उनको अभी तक पता नहीं कि एपिलेप्सी क्यों होता। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च ने पता लगाया। पहले तो कहते थे भाई ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम क्यों आती है पता नहीं जी। तो कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च ने पता लगाया कि वहां पे एक अनफोल्डेड प्रोटीन मिलता है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि ठीक से नहीं बना। अब वापस कनेक्ट कीजिए, मैंने पहले क्या बोला, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अगर आप एनवायरनमेंट को बदल देंगे तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आ जाएंगे, यानी आपके शरीर में के कामकाज में फर्क आ जाएगा, आपकी फैक्ट्री काम करना कम कर देती है। तो अगर काम करना कम कर रही है तो तैयार माल नहीं बन रहा ठीक से, आपको प्रोटीन चाहिए, वो अनफोल्डेड प्रोटीन या फोल्डेड प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन ठीक नहीं, इस्तेमाल के लायक नहीं बना। इसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहा जाता है। आम का मतलब टॉक्सिन, जो ठीक से कन्वर्ट नहीं हुआ, आपके भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में कन्वर्ट नहीं। तो प्रोटीन बना नहीं ठीक से तो आपका शरीर इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन कचरा तो पड़ा आ गया आपके शरीर,
कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा वो। तो पता चला कि पेट में बनना चाहिए कचरा या फिर आपके मेटाबॉलिक सेल्यूलर स्पेसेस में बनना चाहिए, वो ब्रेन में कैसे आ गया, सिर में कैसे आ गया। फिर इंडिपेंडेंट रिसर्च कुछ हुए और पता लगा कि एक वेगस नर्व है, उसके जरिए ये प्रोटीन पेट से सिर में चला जाता है। ठीक है, ये बात आपको मैं 100 मेरे ख्याल से 20 साल 115 या 20 साल के आसपास का रिसर्च बता रहा हूं। एलोपैथी नहीं, ऑल्टरनेट रिसर्च भी इसके साथ में था। अब आयुर्वेद की 8000 साल पहली बात बताऊं आपको। 8000 साल पहले आयुर्वेद क्या कहता है, पार्किंसन क्यों होता है? कहता है उद्गत वात। वो कहता है ऊपर जाता है, पेट से कोई चीज ऊपर जाती है और ब्रेन को इंपैक्ट करती है तो पार्किंसन होता है। आप 8000 साल पहले के रिसर्च को नहीं मानते। हाँ, तो अब आगे की बात करते हैं, कैसे ठीक करें। एलोपैथी कहता है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? डोपामीन की कमी हो गई, डोपामीन ट्रीटमेंट देते हैं। डोपामीन से प्रॉब्लम आती है, लीवोडोपा ट्रीटमेंट देते हैं। अब मॉडर्न रिसर्च ये कहता है कि जो हम लीवोडोपा का ट्रीटमेंट देते हैं उससे पार्किंसन ठीक नहीं होता, खराब होती जाती है स्थिति। तो आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किस बेसिस पे? इंसान को खराब करके मैनेज करने की कोशिश। आधार क्या है? शरीर खराब होता जाएगा। तो ये भी मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। आप भी अपने लॉजिक से सोचे तो ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आयुर्वेद में इसका इलाज अलग तरीके से बताया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरेचन अगर कर दें तो ये कंडीशन में बहुत फर्क पड़ जाता है और इससे फायदा भी होता है। मगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तो भूले भटके भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आपके घर के सामने एलोपैथी की क्लिनिक है। इतना उन्होंने अपने आप को मार्केट किया कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव छोड़ा ही नहीं। जिससे ठीक भी हो सकते हैं वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास में। आपके पास में एक ही चीज है कि आप वहीं जाओगे, चाहे ठीक हो चाहे नहीं हो। चाहे अगर वो बोल भी रहे हैं कि हम ठीक नहीं करते, फिर भी आप वहीं जाना पड़ेगा आपको। मुझे बताइए 70% क्रॉनिक डिजीज में कौन सी एक डिजीज एलोपैथी ठीक करती है? वो साफ बोलते हैं मगर आप उनको नहीं छोड़ रहे। वो साफ बोलते हैं ये ठीक नहीं होगा, डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, हार्ट डिजीज ठीक नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा इन्फेक्शन के अलावा। मगर आप उनको नहीं छोड़ते, कहते नहीं जी आप ही करो। अब दूसरे तरीके से पार्किंसन को डिफाइन करता हूं जो सबको समझ में आएगा। आप लोग अपने आप को प्लीज, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग बुद्धिमान लोग, आप लोग फिरंगी नहीं है। फिरंगी बेवकूफ होते हैं, निरे बेवकूफ होते हैं। साइंस हमसे चुराया, मगर चुराई हुई चीज साफ हजम नहीं होती, कभी ना कभी तो बदला लेगी वो चुराई हुई चीज। तो अब आ रहा है टाइम। तो आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ने पढ़ लिख लिया है थोड़ा, तो बुद्धि कम हो गई। ये हार्वर्ड का रिसर्च है, पढ़े लिखे लोग कम बुद्धिमान होते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च। अब आते हैं समझने के लिए। आप अपने तरीके से समझिए पार्किंसन होता क्या है, सब समझ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है पार्किंसन में? आपके हाथ पांव कंट्रोल में नहीं आ रहे, हिल रहे हैं, आप जैसा चाहें वैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात, इस तरीके से समझिए पार्किंसन क्या है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने हाथ पांव, लिम्स को, सीधी सी बात। अच्छा, अब वापस आइए, कंट्रोल करने में इस्तेमाल क्या करते हैं आप, कैसे कंट्रोल करते हैं? सबको मालूम है, सब कंट्रोल करते हैं। सबको अंदर देखना चाहिए ना क्या इस्तेमाल कर रहा। तो आप लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठा लीजिए और जरा घुमाने की कोशिश कीजिए, या कोई भारी चीज उठाइए, या किसी को धक्का दीजिए, या किसी को खींचिए। देखिए कंट्रोल कैसे करते हैं। आप देखेंगे पीछे सांस रोक के आप अपने एक्शन को कंट्रोल करते, बिना सांस को रोके हुए रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ब्रेथ होल्ड। मगर अगर उससे पीछे और देखेंगे तो ब्रेथ होल्ड करने के लिए भी जिसका होल्ड लेते हैं उसे कुंभक कहते हैं, सांस रोकने के लिए भी जिसका सहारा लेते हैं आप उसे कुंभक कहते हैं।
तो आप चलते हैं तो पृथ्वी का सहारा लेते हैं ना, तो ये कुंभक मैकेनिज्म, बिना दो चीजों के आप एक्शन नहीं कर सकते। आप स्पेस में चले जाइए पृथ्वी से बाहर और जरा चलने की कोशिश कीजिए, आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि दो चीज चाहिए होता। आप हाथ पांव हिला सकते हैं, उसमें दूसरी चीज क्या आती है, उसमें आप सेंटर ऑफ मास, अपने ही शरीर का सहारा लेते हैं। तो बिना सहारे के एक्शन नहीं होता दुनिया में, इसी को डुअल वर्ल्ड कहा जाता है। तो आपने कुछ तो सहारा लिया किसी चीज का, वो कंट्रोल करने के लिए, वो मैकेनिज्म आपका वीक हो गया, यानी कुंभक वीक हो गया। और सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश कीजिए तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी आपकी कम हो गई। तो अब मुझे बताइए, जो चीज कम हो गई, इलाज क्या है? सभी जानते हैं आप इलाज क्या होना चाहिए इसका, उस कैपेसिटी को आप बढ़ा दीजिए और आपके पार्किंसन डिजीज में बहुत राहत मिल जाएगी, आपका न्यूरो रीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम तो प्रूफ दिखा के बोल रहे हैं, तब भी नहीं सुन रहे लोग, क्योंकि वो पढ़ कुछ और रहे हैं, उनको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, वो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनका लकवा मार गया था, वो ठीक हो गया, ड्रॉप फुट ठीक हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो गया, लॉक जॉ ठीक हो गया, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो, ये शब्द भी तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया हुआ है, और वो कहते हैं ये तो ठीक नहीं होता, और हम तो ठीक करते हैं। मगर हम ठीक नहीं करते, आपका शरीर ठीक करता है। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, इसके अंदर क्षमता है, ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। बस आप उसका रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, उसके रिकवरी मैकेनिज्म को आप सपोर्ट दे दें, आप इसके अगेंस्ट में ना जाएं। जो ये करना चाहता है वो करने ना दें, उसको थप्पड़ ना मारे। तो कुंभक से आपका रिकवरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके बीमारी से निकलने की क्षमता बढ़ेगी, आपका रिजुवनेशन फैक्टर बढ़ेगा, रीजनरेशन फैक्टर बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं प्रकृति। जब नर्वस सिस्टम रीजनरेट होगा तो पार्किंसन ठीक हो जाएगा और न्यूरो रिलेटेड कोई भी इशू ठीक हो जाएगी, और उसके लिए आपको कुंभक करना पड़ेगा। हाँ जी, Shushma ma'am writes about dyspepsia and spondylitis. Is dyspepsia and spondylitis interrelated? अभी मैंने इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इन कोरिलेटेड इन्फ्लेमेशन विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैंने किया था। अब देखिए, ये नए नए शब्द हैं, इन शब्दों में अगर आप फंसेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। इनको समझने की कोशिश करिए। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है? जब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, टॉक्सिन्स बन रहे हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? आइटिस क्या होता है? आइटिस लिखा हुआ, आइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। तो टॉक्सिन से इन्फ्लेमेशन, यही तो पहले आंसर में बताया मैंने कि ये टॉक्सिन्स जो बना, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, उसके कारण डिस्पेप्सिया होगा, उसके कारण टॉक्सिन्स बनेंगे, टॉक्सिन से आइटिस इन्फ्लेमेशन होगा। ये जो वीक एरिया है आपके शरीर में वहां होगा। तो स्पॉन्डिलाइटिस अगर हम कह रहे हैं तो उस एरिया में, आपके रीढ़ की हड्डी के उस एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको एक नाम दे दिया, दूसरे में कुछ और नाम दे दोगे आप। नाम देने से क्या होता है साहब? ठीक तो कोई होता नहीं है। तो ठीक करने के लिए आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे इंप्रूव करेंगे मेटाबॉलिज्म को? कुंभक से करेंगे। कुंभक से कैसे करेंगे? अब मैं आपको बताता हूं। एक जवान इंसान को छू के देखिए, एक बूढ़े इंसान को छू के देखिए, दोनों में क्या फर्क नजर आता है? एक जवान इंसान का शरीर आपको गर्म महसूस होगा, एक बूढ़े इंसान का शरीर आपको ठंडा महसूस होगा। हुआ क्या उम्र के साथ में? मेटाबॉलिक हीट कम हो गई, शरीर की गार्हपत्य अग्नि कम हो गई। ये शब्द मैं भी बोल सकता हूं, मगर नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली इन शब्दों में। आपको मेटाबॉलिज्म में ट्रेनिंग मिली, हालांकि मेटाबॉलिज्म भी कोई नहीं समझता। तो गार्हपत्य अग्नि या जठराग्नि जो कि कॉमन है, वो कम हो गई। अब एक काम करें, कुंभक करें 5 मिनट और देखें, कई लोगों को पसीना आने लग जाएगा।
बिना शरीर को हिलाए। क्या किया हमने? हमने मेटाबॉलिक हीट बढ़ा दी। सबसे पहली चीज, मेटाबॉलिक हीट आपके शरीर में होनी ही चाहिए, तभी आपका शरीर रिकवर करेगा, ठीक होगा। यानी आपने कम से कम सुना तो होगा, आप लोग भारतीय परंपरा से ही हैं, बेशक से अब थोड़ा सा काले अंग्रेज बन गए हैं, मगर भारतीय परंपरा से हैं, बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, कभी किसी वैद्य से मिले होंगे तो सुना होगा, सारी बीमारी का जड़ पेट होता है, ये सुना तो होगा आपने कम से कम। यानी वो कहना क्या चाहते हैं उसको आप समझ नहीं रहे, आप पेट सोच रहे, आप समझ नहीं रहे। पेट का मतलब जठराग्नि होती है, पाचन की क्षमता होती है, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो तो कितनी सीधी सी बात कर रहे हैं, हर एक बीमारी का जड़ जो है मेटाबॉलिज्म। आपकी फैक्ट्री अगर ठीक होगी तो वो अच्छा माल बनाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज है, पेप्टिक अल्सर बोले उसे, अल्सर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा होंगे, डाइजेशन नहीं होगा, रिफ्लक्स होगा एसिड का, तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ये केवल नाम है, आप गूगल में इसे आम भाषा में ट्रांसलेट करके समझें क्या है, कहां पे है, क्यों हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि देखिए इससे आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे जबरदस्ती करके शरीर के साथ में। एक रैनिटिडिन खा लिया, एक ओसिड खा लिया, हाँ, रैबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, ऐसे ऐसे नाम कुछ के दवाइयां खा ली, थोड़ी अमेरिका को पैसा दे दिया जेब से निकाल के, थोड़ा मैनेज हो गया, आपको अच्छा लगा, मगर आपका शरीर तो खराब हो गया साहब। हाँ, अंग्रेजों को पैसा दोगे तो आपकी तो वो शरीर को खराब कर देंगे। तो क्या करें, क्या करें? आपके शरीर का पाचन कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, दवाइयां थोड़ा सपोर्ट कर सकती हैं आपको, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल हो। अच्छा है कि नेचुरल की तरफ में जाएं, प्राकृतिक दवाइयों की तरफ में जाएं, लेकिन वो भी मैनेजमेंट है। आखिरकार आपका ही शरीर ठीक करता है, आपके शरीर में वो सारी क्षमता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, मगर उस पे, इसके लिए उस पे काम, अंदर काम करना पड़ेगा। आपको अगर एक्सरसाइज भी ज्यादा करनी है ना, तो आपका हार्ट और लिवर स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? 35 साल 40 साल के लड़कों में जो खूब एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। तो पहले ऑर्गन को मजबूत कर लीजिए, वो कुंभक से होगा, और उसके बाद कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपना जीवन को आप जितना मर्जी चाहे सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपनी बीमारियों से निकल सकते हैं। Okay, Rashmi Sanjay writes about HbA1c 7.2 from 2 years, 8 years of pre-diabetes, taking medicine for diabetes and cholesterol. First of all, cholesterol is friendly. The more you reduce your cholesterol, your diabetes will never go. ये कौन कह रहा है? Sorry to interrupt, Swamiji. There is a little more to it. Taking medication for diabetes, cholesterol, and neuropathy, severe feet sensitivity is my main concern, and poking pain, numbness. There is no medicine for neuropathy. There is no medicine for neuropathy. First of all, पहली बात ये समझ जाइए, there you cannot create neuro regeneration by taking in a pill. आप नंब कर सकते हो नर्वस सिस्टम को, उसके कुछ एक्टिविटी साइकिल्स होते हैं, उनको काट दीजिए, नंब हो जाएगा। आपको ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, पता नहीं चलेगा, मगर धोखा दे रहे हैं आप शरीर को, साथ क्लियरली समझ जाइए। धोखा देने से कोई ठीक नहीं होता है ना। ये वेस्टर्न इकोनॉमी धोखा देके अपने आप को इतना बड़ा बताती है ना। अब देखो सब फिसड्डी हो रहे हैं, सब गिर रहे हैं, अगले 15 साल में देखो सबकी हालत खराब हो जानी है। तो मैंने बताया, आप पहली चीजों को क्लियर कट समझ जाइए, थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। क्या ये मैं बोल रहा हूं? नहीं, ये मॉडर्न रिसर्च है साहब, दिस इज मॉडर्न रिसर्च। सो इफ यू आर टेकिंग स्टैटिन्स, अगर आप स्टैटिन ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। जिनके अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उनका बॉडी उतना हेल्दी होता है। So now this is ACP guideline 2016, American College of Physician guideline 2016, that cholesterol is not a disease.
क्या आपके डॉक्टर मान रहे हैं उस बात को? नहीं मान रहे, क्योंकि आपके डॉक्टर शायद 25-30 साल पहले पढ़े होंगे। तो अपडेट आप अपने आप को रखिए, क्योंकि आपके हाथ में आजकल इंफॉर्मेशन एज है ना, गूगल है, इंफॉर्मेशन आपके हाथ में। दूसरी बात 7.1, आपको मालूम है व्हाट इज द नॉर्मल डायबिटिक लेवल, द पैरामीटर ऑफ HB1AC? इट इज 8 to 8.5। उससे अगर नीचे है तो आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप तो 7.8 में उछल रहे हैं, क्योंकि आपको 6.5 बताया गया होगा। आपको मालूम है यूरोप ने ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या रख लिया आजकल? 140/90। पर आप तो 135 में भी दवाई खा रहे होंगे। वो कहते हैं 140/90 तो नॉर्मल है साहब, दवाई तो खाने की जरूरत ही नहीं है। किसी टाइम पे 180/110 था नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये आपको टैग तो कर दिया गया डायबिटीज, मगर क्या रियली आप डायबिटिक हैं? क्योंकि शुगर का थोड़ा फ्लक्चुएशन तो बहुत कारण से हो सकता है। अगर आप अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं तो भी शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। वो अच्छी बात है, वो बचाने के लिए है आपको, वो बचाने के लिए है आपको, मगर आपको तो डायबिटीज टैग कर देंगे। आप तो शरीर को काम भी नहीं कर, बचाने भी नहीं देंगे। कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल पैदा होता है, कॉर्टिसोल आपको बचाता है, आपके ऑर्गन डैमेज बचाता है। आप कोलेस्ट्रॉल कम करोगे तो ऑर्गन डैमेज कर दोगे। कल को आपका ऑर्गन डैमेज हो गया, अब मुझे बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? WHO लेगा जिम्मेदारी? कल को आपको किडनी खराब हो गई, और हो ही रही है ना, नहीं दिख रहा आपको? तो आप गूगल कर लीजिए कितने लोगों को कितने डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, कितने लोगों को डायलिसिस हो रहा है, कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है। आप गूगल कर लो ना, किसी और से पूछने की जरूरत क्या है? तो कल को आपका डायलिसिस शुरू हो गया, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि WHO जिम्मेदारी लेगा? आपका डॉक्टर क्या बोलेगा? जी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, इसमें तो कोई इलाज नहीं है, आप डायलिसिस कराते रहो। डायलिसिस कराने में ही पता नहीं कितना खर्चा आएगा आपका, 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए खर्चा, डिपेंडिंग अपॉन कहां जा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे 60 लाख रुपए का खर्चा है, घर परिवार सब कुछ, सब पैसा जायदाद सब बिक जाएगा, और किडनी ट्रांसप्लांट कराते ही आप खत्म हो जाओगे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तरह। क्या काम आया उनका पैसा? क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट यूजुअली सूट नहीं करता। फिर क्या हुआ? कौन जिम्मेदारी ले रहा है आपकी लाइफ की? किसने जिम्मेदारी ली कि आपकी लाइफ कम कर दी गई? आपके डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी? आपकी सरकार लेगी जिम्मेदारी? एक बता दीजिए, आपने वैक्सीन लगा लिया, आपको न्यूरोपैथी हो गया जी, आपकी सरकार लेगी जिम्मेदारी? वो तो अच्छे के लिए ही कर रही है। ये तो जी नशा है, रिलीजन की तरह नशा है। रिलीजन है ना जो अब्राहमिकल रिलीजन, भगवान के नाम पे करोड़ों लोगों को मारा है। गॉड के नाम, भगवान के नाम पे तो है। हमारे सनातन में तो हमने किसी को नहीं मारा, वहां गॉड के नाम पर पता नहीं किस किस के नाम पे करोड़ों लोगों को मारा। एलोपैथी साइंस के नाम पे करोड़ों को नहीं, अरबों लोगों को मार रही है। तो साइंस भी सुपरस्टिशन बन जाता है अगर उसका जिसे कहते हैं ना बैकग्राउंड बहुत वाइड नहीं है। तो बायस्ड एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट को अनबायस नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये एक फैक्ट है कि कोई भी अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट आप कर ही नहीं सकते। मगर हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में पहली चीज, एजुकेशन से पहले हम बच्चे को कान में फूंकते थे, विद्यारंभम संस्कार कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि, यानी तुम अनबायस्ड हो जाओ, अपने, तुम नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं हो, तुम पूरा ब्रह्मांड हो। तब जाके एजुकेशन आपको फायदा करेगा, वरना एजुकेशन मारेगा, साइंस मारेगा। तो आपको टैग तो कर दिया गया, और उसकी वजह से आप दवाई भी खा रहे हो, आप स्टैटिन भी खा रहे हो, और वेस्टर्न कंट्रीज में स्टैटिन देते नहीं है, डाउटफुल है। आजकल कह रहे हैं घी पियो। अरे साहब, हमारे यहां तो हजारों साल से परंपरा है, और यूएसए में जाइए वो घी का शॉट ले रहे हैं,
वर्जिन कोकोनट ऑयल का शॉट ले रहे हैं, हल्दी को पेटेंट करा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भैया हम कितना भी अच्छा अंग्रेजी में बोल रहे हैं, एटिकेट से बोल रहे हैं, टाई लगा के बोल रहे हैं, मगर खराब तो हो ही रहे हम, गलत बोल रहे हैं हम, उनको मालूम है। तो आप दवाई जो आपने शुरू कर दिया इसका, आप जो भी दवाई ले रहे हैं उससे आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अच्छा, नुकसान भी जैसे बता रहे हैं ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऐसी बात नहीं है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक्चुअली ब्लड में शुगर डायबिटीज होती ही नहीं है, वो वेस्ट शुगर होता है। तभी सिम्टम पे जाइए, क्या आपको ज्यादा प्यास लगती है, क्या आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उस समय अगर ये सिम्टम आते हैं, क्या आप थके हुए महसूस करते हैं, अगर ये सिम्टम आते हैं तब आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अब मुझे बताइए कि जब भी ब्लड में शुगर ज्यादा होगा, प्यास लगती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी कि शरीर उसको फेंक रहा है। तो फेंक क्यों रहा है, पहली बात तो ये बताइए। अगर वो इतना अच्छा शुगर है और इतना शुगर है आपके अंदर, फिर भी वीक क्यों फील कर रहे हैं? ये सोचिए तो सही अपने अंदर, इतना शुगर है आपके अंदर, उसके बाद कमजोर क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो शुगर इस्तेमाल के लायक नहीं है, तभी तो शरीर फेंक रहा है। आप शरीर के इंटेलिजेंस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं किसी और के बोले पे, क्योंकि वो 5 साल में अपना स्टेटमेंट चेंज कर देंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। कल को अगर वो कहें कि डायबिटीज में दवाई नहीं लेनी चाहिए कोई भी एलोपैथी की, तो आपने तो 20-30 साल से ले लिया, आपने तो बर्बाद कर दिया अपने आप को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कहने का मतलब ये कि आपको थोड़ा अपने हिसाब से सोचिए। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सिम्टम, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अपने शरीर पे ज्यादा भरोसा कीजिए। इफ यू डोंट हैव अ सिम्टम, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज बता देता हूं, द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभक, यू फील मोर एनर्जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एक इंसान ऐसा आज तक नहीं आया, हजारों लोगों ने कुंभक किया, कोई एक इंसान ऐसा नहीं आया जिसने बोला कुंभक करते ही मेरे को एनर्जी हाई होता है। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में, ऐसा एक इंसान नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? कुंभक करते ही आपका मेटाबॉलिज्म हम रेज करते हैं, हाई करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपके सिम्टम ठीक हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर शरीर के अंदर से खून निकाल के आप टेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कई लोगों को हाई शुगर चाहिए उनके ब्लड में। अगर उनका शुगर कम कर देंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी, उनके ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने दीजिए, क्योंकि उसी से कोर्टिसोल बनेगा। कोलेस्ट्रॉल से ही, ट्राइग्लिसराइड से ही आपका शरीर अपने आप को बचाता है। उसका इम्यूनिटी डिपेंड्स अपॉन द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। उसी से ब्लड प्लेटलेट्स आपके बनते हैं, उसी से आपका शरीर रिकवर होता है। आप रिकवरी मैकेनिज्म को रोकें ना, इससे कोई नुकसान नहीं होता। Next question is by Neeta ma'am. After menopause, I have so many problems. Sometimes I cannot walk. So why didn't you prepare for menopause? आप इंडिया में रहते हैं, आपने कुछ सुना होगा, आपने सुना कि संस्कार करके कुछ कोई चीज होती है। देयर इज सर्टेन थिंग्स कॉल्ड संस्कार। कितने होते हैं? 16 संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। What are संस्कार? Preparing your body for the next stage of life. संस्कार किसे कहते हैं? क्योंकि आपके ही कल्चर को किसी अंग्रेज ने संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और आप उसी अंग्रेजी को पढ़ते हैं, तो आप एक्चुअली वो पढ़ते ही नहीं जो कि संस्कृत में बोला गया। आपको धर्म को रिलीजन बताया जाता है। धर्म रिलीजन नहीं होता। धर्म होता है कंड्यूसिव लॉ, किस तरीके से आप हैंडल करें एक एस्पेक्ट को जिससे कि वो सफल हो, इसे धर्म कहते हैं। धार्यति इति धर्म, जो आपको धारण करे, जो आपको होल्ड करे, जो आपका नुकसान करने से बचाए, उसी को धर्म कहते हैं। इसीलिए धर्म हर लेवल पे है। पर्सनल धर्म, हाँ, व्यक्तिगत धर्म, शारीरिक धर्म। क्या आपने शारीरिक धर्म का पालन किया? अगर आप शारीरिक धर्म का पालन नहीं करेंगे तो शरीर बीमार हो जाए।
मगर आप तो रिलीजन समझते हैं। ये साइंस है साहब, मैं कह रहा हूं आपके खून में साइंस है। ये फिरंगी साइंस को चुरा के ले गए, इनके बस का नहीं है। सबसे मूर्ख प्रजाति है पूरी पृथ्वी पे ये फिरंगी। तो आपने संस्कार किया, आपने शरीर धर्म का पालन किया। अगर आपने शरीर धर्म का पालन नहीं किया, आपने तैयार नहीं किया अपने आप को मेनोपॉज के लिए, तो आपको तो प्रॉब्लम आएगा। अगर आप उस लायक नहीं बने तो उस स्थिति, उस सिचुएशन के आने के बाद क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? ये तो सिंपल लॉजिक, सिंपल साइंस है। तो ना तो हम अपनी बच्चियों को प्रिपेयर करते हैं, ना बच्चों को प्रिपेयर करते हैं प्यूबर्टी के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो क्या हम अपनी बच्चियों को प्रिपेयर करते हैं? क्या आपको मालूम है हमारे ही कल्चर के अंदर रजस्वला परिचर्या करके संस्कार है। रजस्वला परिचर्या, वज्रवीर परिचर्या, कि मेंस्ट्रुअल पीरियड को कैसे हैंडल करना, वही रजस्वला परिचर्या है। सबसे अच्छी मेंस्ट्रुअल हेल्थ कौन सी लेडीज की है दुनिया में? आपको लगता होगा अमेरिकन लेडीज, यूरोपियन लेडीज की। नहीं साहब, मणिपुरी लेडीज की। भारत में मणिपुर एक जगह है, वहां पे जो विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट माना जाता है वो पहला कपड़ा जिसपे मेंस्ट्रुअल ब्लड गिरा, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। आप तो उसको गलत मानने लग गए। हमारे यहाँ रजस्वला का जो रक्त होता है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। किसी टाइम पे तो उसे हम अभिषेक करते थे शिवलिंग पे। तो आप सब बहुत साइंटिफिक लोग थे, आपके बाप दादा। आप अनसाइंटिफिक हो, सुपरस्टिशियस लोग हो, कैसे समझेंगे? आपका शरीर कैसे ठीक रहेगा? तो आपने मेनोपॉज के लिए प्रिपेयर तो किया नहीं अपना, तो कैसे आप इसको झेल पाएंगे? पहली बात, ऐसी बहुत सारी चीजें जब आपके शरीर के अंदर बंद हो रही हैं, तब आपका शरीर, जैसे कि हार्मोनल जो आपका साइकिल्स हैं, हार्मोनल फ्लो है आपके बॉडी में, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। ये आपके डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, ये आपके एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये आपके ऑर्गन फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो आपने कम से कम सुना तो होगा कि मेनोपॉज के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोनल फ्लो अब वैसे नहीं हो पाएगा जैसे वो पहले हो रहा था। पर आपने तैयार नहीं किया अपने आप को। तो तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय सभ्यता ये नहीं कहती कि राजा बनना है तो किसी राजा को मार के उसकी गद्दी पर बैठ जाओ। जब चाणक्य को, चंद्रगुप्त को राजा बनाना था तो उसको जंगल में ले गया, कहता है राजा की क्वालिटी बना, अपने अंदर लेके आओ, लोग तुम्हें अपने आप ही राजा बना देंगे। तो ये भारतीय सभ्यता है। हम लोग यहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां ईश्वर को भी आना पड़ेगा। हम कहते हैं हम तुमको ऐसी ऑप्शन नहीं दे रहे, ईश्वर को भी आना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। हम वो लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, जो एक लाइफ को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सभ्यता ही अपने को तैयार करने की सभ्यता है। आप अगर योग परंपरा, कम से कम उसको मार्केट बहुत किया गया है, तो वो तो सुना ही होगा आपने। योग में भी कुछ पाया नहीं जाता, अपने को तैयार किया जाता है। तो तैयार करने का तरीका कुंभक है। कुंभक सबसे पावरफुल तरीका है अपने को तैयार करने का। अगर कुंभक करेंगे तो आपके अंदर, शरीर के अंदर की फंक्शनैलिटी, ऑर्गन, इसको आप बहुत मजबूती देंगे। आपका जीवन में जो भी परेशानी है, शारीरिक और मानसिक, ये दोनों बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये दो अलग अलग नहीं है। आप शरीर अगर आपका खराब है तो आप मानसिक रोगी हैं ही 100%। आप माने चाहे ना माने। तो कुंभक अगर करेंगे तो सबसे पहले आपकी मानसिक विकृति, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, वो 100% ठीक हो जाएगी। आज तक कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बनी जो कि मेंटल इश्यूज को ठीक कर सके, मगर कुंभक सबसे पहले आपके माइंड को सेटल करेगा। आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, डिमेंशिया ठीक हो जाएगा,
आपकी समझ की शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बीमारी मानसिक लेवल पे आती है, और मेनोपॉज के बाद में मूड स्विंग्स, ये सब माइंड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो कि आपके शरीर के हार्मोन के साथ भी उसको जोड़ के आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि प्लीज अपने शरीर को सपोर्ट कीजिए, इस पे काम कीजिए। दवाइयों से आप ठीक नहीं होते हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। दवाई, मेडिसिन कैन बी अ लिटिल सपोर्ट फॉर सम टाइम, अ लिटिल मैनेजमेंट फॉर सम टाइम। सपोर्ट हो सकता है मेडिसिन, केमिकल और नॉन केमिकल। आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन भी सपोर्ट ही हो सकता है। ज्यादा कोशिश करें हर्बल की तरफ में जाने की, मगर शरीर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कुंभक करना ही पड़ेगा। ऑर्गन्स अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुंभक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ही शरीर का मैकेनिज्म है, ये कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। ये आपका शरीर जिस तरीके से अपने आप को चलाता है वही मैकेनिज्म हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा कस्टमाइज करके आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। Okay, Asha ma'am, you can ask your question, please. Asha ma'am. I'm 80 years old, and lately I've been having a lot of pain in my digits of my fingers, and in my right heel there's a lot of pain, and also in my toes there's a lot of pain. So I'm finding it very difficult to walk. But Usually thankfully, this I've enjoyed good health throughout my life. It's only since this corona thing gave me a lot of anxiety and depression. So probably it's all due to that. I mean, it's Yeah, something I just could not get over it. yeah. As I said, things the problem comes to your mental sphere first. ये एको हो रहा है, कोई अपना माइक बंद कर लीजिए। So, as I said, it's still echoing. रचना जी, आप थोड़ा वो म्यूट कर दीजिए। कर रहे हैं। So, as I said, if you go to the core of an issue, it'll be Swamiji, please unmute yourself. आप इशू के कोर में जाएंगे ना, तब आपको उसका you'll get a little support or help in coming out of the problem. Now, Corona period has created a lot of trouble for a lot of people who otherwise were pretty healthy and there were no diagnosed problem as such in their life. So the thing is, even if you go through a situation which creates a mental infliction or mental difficulty for somebody, what are you doing to come out of it? This is a question which everybody should ask. What are you doing to come out of it? So what you do, you usually Google down and find out ways and means what is available. So, but do you know that you know all the tricks and ways to come out of any damn problem? क्या आपको मालूम है कि आपको मालूम ही है कि कैसे प्रॉब्लम से निकलना? The only thing is you are not looking at your own system. If you don't feel fine, what do? You find out something where you feel fine, isn't it? आज लोग अगर ड्रग्स की तरफ में, अल्कोहल की तरफ में जा रहे हैं, some kind of addiction. Even Chinese food is an addiction, no? Ajinomoto is an addiction. Why? Because just to feel a little happy. So people are doing things. But if you look a little deeper, you'll know that there are real methods this body knows to come out of a problem. Do you really know you can come out of your mental issues by just eating the right kind of stuff that your body demands?
बट यू आर नॉट लुकिंग एट द बॉडी डिमांड. आप तो टाइम पे खाना खाना चाहते हैं. टाइम पे खाना खाने से तो बीमारी होंगे. So when you feel hungry and you eat whatever your body is demanding, that becomes your medicine. A simple method. You make yourself hungry, a little more hungry, fiercely hungry, and see what your body is demanding and eat that stuff. That will become your medicine. So just by not eating, you can correct your mind. Do you know this? And we have put this in our culture. What time of the week or what day of the month is conducive where if you just keep yourself a little empty, if you just bring in a rhythm of this body, chant a little mantra or sing a little classical note, do you know you can come out of a lot of hormonal issues? And there was a culture built on that Sandhya Vandan, mantra chanting, bhajan kirtan, but we are not doing it. Lot of things, 3 things you must remember. If you correct the bhava, the raga and the tala of this body, in easy translation, the rhythm, balance and strength of this body. Bhava, rag, tala. Bha, ra, ta. आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी है. तो भाव कैसे ठीक करेंगे? सेलिब्रेशन से भाव ठीक होता है. आपका देश सेलिब्रेशन का देश है ना. 365 फेस्टिवल होते थे. रोज सुबह उठ के एक रंगोली अलग तरीके की घर के बाहर बनाई जाती थी. आपने सेलिब्रेशन छोड़ दिया. भाव खराब हो गए. आपने भजन कीर्तन गीत गाना छोड़ दिया. आपको मालूम है, आपको अगर अपने दादा दादी याद हैं, जब वो काम करते थे, खेती करते थे, पानी दूर से लेके आते थे, क्या काम करते थे? रस्सी बुनते थे, कपड़ा बीनते थे. कैसे काम करते थे? गीत गाते हुए काम करते थे. वही फोक सॉन्ग्स है ना. आप गीत गाते हुए काम करते हैं क्या? तो आपके भाव कैसे ठीक रहेंगे? काम बोझ बन जाएगा. वही शरीर हिलाना आपको थका देता है, मगर वही डांस करना आपको रिजुविनेट कर देता है. तो यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ. Life will become a load. It will become depressed. You will become depressed. It will become a depressing life. तो भाव ठीक नहीं रखा. बैलेंस ठीक रखा है क्या? राग ठीक रखा है क्या? बैलेंस ठीक रखा है अपने शरीर का? तो आप शरीर के हिसाब से कोई काम ही नहीं करते. आप सारी अपनी पढ़ाई के हिसाब से काम करते हैं. तो आप शरीर का बैलेंस कैसे ठीक रखेंगे? कब आपको गहरी नींद आ रही है आपको मालूम नहीं. कब आपको भूख लग रही है आपको मालूम नहीं. तो शरीर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो शरीर का बैलेंस कैसे बनाएंगे? वैसे भी आपका अलाइनमेंट करते हो क्या? गाड़ी की अलाइनमेंट करते हो कि नहीं? आप 4 व्हीलर की अलाइनमेंट करते हो? आप 2 व्हीलर की भी अलाइनमेंट होती है, मगर अपने शरीर की अलाइनमेंट नहीं करते. नाभि सही जगह पे नहीं है, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा ही होगा. क्या धरण, आपने शब्द सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड धड़न? नाभि खिसकना. क्या आप ठीक करते हैं उसको? क्या आपने कौड़ी सुना है? ये नहीं सुना होगा शायद. चेस्ट के मिडिल का भी एक अलाइनमेंट होता है. अगर चेस्ट के मिडिल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट नहीं है, कौड़ी कहते हैं, बीच में एक प्रोट्रूडेड बोन. अगर रिब के जहां मीट कर रही है ना, लोएस्ट रिब के जहां मीट कर रही है, वहां पे एक उठी हुई हड्डी है, वो कौड़ी है. उसका अलाइनमेंट है. अलाइनमेंट नहीं होगा तो हार्ट एंड लंग का प्रॉब्लम आएगा. अब मुझे बताइए, हार्ट डिजीज कितना बढ़ रहा है? It has become the number 1 cause of death in the world. तो कौड़ी की अलाइनमेंट कर रहे हैं क्या? नलों की अलाइनमेंट कर रहे हैं क्या? जांघों की अलाइनमेंट. आपको मालूम है, जब पहलवान अपनी शक्ति दिखाता है तो क्या करता है? अपने जांघ ठोकता है. उसी को गारेपत्य अग्नि भी कहते हैं. वो हार्ट की स्ट्रेंथ है आपकी, जो गारेपत्य अग्नि से आती है. यानी कि आपके थाइस का अलाइनमेंट होता है. क्या आप वो कर रहे हैं क्या? आप बैलेंस नहीं बना रहे शरीर का.
हमारे अष्टांग चिकित्सा में ये तीनों अलाइनमेंट के लिए मेथड। तीसरी चीज, स्ट्रेंथ बिल्ड करना। आप कौन सा काम कर रहे हैं स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए? इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉडी, हार्ट की स्ट्रेंथ, लिवर की स्ट्रेंथ, किडनी की स्ट्रेंथ, कोई काम नहीं कर रहे। स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करते हैं? कुंभक से ही ये शरीर स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। तो अगर ये तीन चीज आप अपने अंदर ठीक कर देंगे, इफ यू करेक्ट दीज थ्री थिंग्स, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, भाव, राग, ताल, अगर ये तीन चीज आप करेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम आउट ऑफ इट, एनी काइंड ऑफ मेंटल डिफ्लेक्शन, deviation. The second thing, your body will start getting into what you can call as healthy state. आप कुंभक करेंगे ना, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। I can give you hundreds of testimonials जहां लोग कहते हैं कि बाकी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है नया जीवन मिल गया, अपने आप ही अंदर अच्छा लगता। And this is a natural state of affair. Your body, your life is designed in such a manner that you feel happy just by itself, not by achieving something. अगर कुछ अचीव करके आप हैप्पीनेस फील करते हैं, इसका मतलब वो एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है साहब, वो हेल्थ नहीं कहलाता, वो हैप्पीनेस नहीं कहलाता। किसी के सिर पे पांव रख के अगर आप खुश फील करते हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो एक्सप्लॉयटेटिव बहुत बन गए हम। हैप्पीनेस कम्स with right kind of strength, balance and rhythm of this body. So you build that and you will be able to come out of it very easily. Just spend some time with yourself. आपको जो practices सिखा रहे हैं, it's a 40 to 1 hour practice depending upon person to person and speed. आपको 40 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है। आप केवल इतना समय अपने आप को दे दीजिए। One guarantee that I give you is your whole life will change for better. आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Okay, Santosh Rathi, can you please ask your question? And this is the last question we are taking. Santosh Rathi. Uma ma'am, you can ask your question in the meanwhile. Anybody, whoever would like to ask a question? उमा जी, आपको बहुत दिनों बाद देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं आजकल बॉस्टन में हूँ बेटे के पास। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि मैं कुंभक तो करती हूँ, ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा है मेरा इस समय। दवा मैं हफ्ते में 1 दिन खाती हूँ बस खाली। वो भी साइकी है आपका? हाँ हाँ, वो छूट जाएगा, मुझे लगता है वो छूट जाएगा। पर मेरी टिंगलिंग में अभी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या मैं ये अष्टांग चिकित्सा वाला ज्वाइन करूँ? हाँ, टिंगलिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूरो रीजनरेशन एक फैक्टर तो चालू हो जाता है, मगर टिंगलिंग जो होता है ना, वो यूजुअली डिसअलाइनमेंट से होता है। कहीं पे सपोज कीजिए आपके पाँव में कहीं टिंगलिंग हो रही है, तो वो रीढ़ की हड्डी पे ना नर्व जो एंडिंग्स है ना, वहां पे उसका थोड़ा दबाव होता है तो टिंगलिंग होती है। एक तो ये, तो ऐसे केसेस में अगर शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए ना तो टिंगलिंग में बड़ा फायदा होता है। इसीलिए आप इसमें ना हम हठ विन्यास एक चीज सिखाते हैं जिसमें कि बॉडी का मूवमेंट है ब्रेथ के साथ, और वो बॉडी को, रीढ़ की हड्डी को भी उसमें खिंचाव मिलता है, तो उसमें टिंगलिंग में आपको फायदा मिल जाएगा। उसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कुंभक कर रहे हैं, टिंगलिंग आता जाता रहेगा, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा हठ विन्यास करके आपको और भी मतलब शरीर के अंदर स्फूर्ति महसूस होगी और ज्यादा शरीर से काम भी ले पाएंगे, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और एक सवाल और है, और एक बच्चे को ऑटिज्म है 8 साल की। देखिए ये बड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अब आप लोगों को, जैसे आपको तो मैं बोल ही सकता हूं
कि आप कोई मुझे रिसोर्स चाहिए, मुझे लोग चाहिए जो किसी तरफ में काम करने की जिनकी रियल में इच्छा हो। क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक बच्चों का जो प्रोजेक्ट है वो किसी वजह से मुझे सही लोग नहीं मिल पा रहे, क्योंकि बच्चों को अलग तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। हम अपने बाकी कोर्सेज में 16 और 16 से ऊपर ही लेते हैं, 16 से नीचे वालों को ना एक अलग तरीके से हैंडलिंग उनकी चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ लोग चाहिए जो कमिटेड हैं कि हमें बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों में आजकल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डायबिटीज, इवन यंग लड़कियों को थायराइड और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा, और ऑटिज्म जैसी चीजें जो हो रही है ना, ये बहुत राइज में है, या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक ADHD है ना, डेफिशिएंट जो अटेंशन डेफिशिएंसी एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, हर 10 में से 6 बच्चे को है। आप सोचिए, तो उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, मगर उनके ऊपर काम इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम एडल्ट्स के ऊपर थोड़ा क्या कि जिम्मेदारी बांट ली जाती है यहाँ पे, कि हम आपको सिखा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कीजिए। मगर बच्चों में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनका हैंड होल्डिंग होना चाहिए, उनको हाथ पकड़ के ही सिखाना पड़ेगा, और तभी उनमें हम उनको ठीक भी कर पाएंगे, उनमें बदलाव ला पाएंगे। तो I need people who can actually be committed or committedly work in that area. कोई नजर में आए, कोई यंगस्टर हो, कोई करना चाहे, कोई टाइम देना चाहे, ऐसा बताइए, हम बच्चों के लिए शुरू करेंगे। एट प्रेजेंट हम यही कहेंगे कि हम उन्हें डायरेक्ट कर देते हैं किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास में या रसशास्त्री के पास में, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई है ऐसा तो मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है। हाँ, थोड़ा रसायन में इसका अच्छा उपचार है, बट क्या है कि हम हमेशा इनको कुंभक के साथ में जोड़ना चाहते हैं, इससे बहुत बहुत ज्यादा इसमें एफिकेसी हो जाएगी इन सब थेरेपीज की। वो अभी तो नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ, मैं गाइड कर दूंगा कहाँ पे इसको कंसल्ट करना है, आप वहां ट्रीटमेंट उनको दिलवा सकते हैं। थैंक यू। सो विल एंड दिस सेशन विद दिस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सेशन में आने के लिए, और आपके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, Swamiji. Good night, and good night to all the participants. Stay well, stay healthy.